अल-निसा गर्ल्स पीयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कलबुर्गी एंड RM पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलबर्गा की तरफ से रखा गया था हाउ टू स्कोर हायर इन 10th बोर्ड एग्जाम। स्पेशल टॉपिक जहां पर मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद जमीर हुसैन, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड करियर काउंसलर ने अपना वक्त दिया। साथ चीफ गेस्ट रहे मिस्टर नागेंद्र बेलू, रिटायर्ड प्रिंसिपल CI कॉलेज, सिस्टर लेनेट सेक्यूरा, माउंट कैरमल कॉन्वेंट स्कूल, जिन्होंने सब मिलकर मोटिवेशन बात किया और बच्चों को काफ़ी एंकरेज किया। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर रहे डॉक्टर मतवली खानम और साथ मिसेस गुंडम्मा जी। याद रखिए, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। 10th के एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसी को चलते हुए ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया था जहां पर बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट भी किया गया और उनकी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग भी की गई, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी खुश रहे। इस मौके पे मिस्टर सैयद समीउल्लाह, मैनेजिंग ट्रस्टी सैयद अजमतुल्लाह एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, मिसेस रूही तबस्सुम MSc B.Ed, प्रिंसिपल अल-निसा गर्ल्स पीयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, साथ शरण गौड़ा पाटिल, प्रिंसिपल RM पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर मौजूद रहे। इस इवेंट में करीब 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। A beautiful smile is the best welcome. It can create a day good easily. A very warm good afternoon all. Myself Sayyid Samiullah. I am the managing trustee of Sayyid Azmatullah Educational Charitable Trust. Welcome you all to gathering on a very wonderful motivational talk by Mr. Mohammad Zamir Hussain. He is going to say you that how to score better grades in your 10th standard. He is a corporate trainer and career counselor who is going to train you how to welcome the challenges, look for the opportunities in every situation and learn to grow in wisdom. Appreciation is the highest form of prayer, for it acknowledges the presence of good. When you shine the light of your thankful thoughts, I extend my warm welcome and heartful thanks to our guest. I heartily welcome Mr. Nagendra Belur sir, who is the retired principal of CI College, Shahabad. I wholeheartedly welcome Sister Lenet Squara, who is the headmaster of Mount Carmel School, Convent, Shahabad. For giving us the precious time, I would like to express my gratitude for making the gathering more special by very special guests. I welcome Dr. Matwali Khanam ma'am and Gundamma ma'am. Your presence is highly appreciated, ma'am. I give a few small example activity. Please look at each other. Look at each other. Now just look at next to your neighbor. How they are? Equal and they are like you only? No, no one is like each other. Everyone is different. God has created in His own image and likeness and created beautifully different way. 5 fingers are not equal. Am I right? At the same time, you also individually very, very unique person in front of God in the society. A very good afternoon to everyone present here. A very warm welcome to everyone present here. I am Aisha Siddiqa from Al-Nisa Girls PU College Arts and Science. I am very grateful to
have opportunity to welcome you all on the event How to Score Good Marks in 10th Board Exam. All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent. By this thought, I would like to welcome Mr. Zamir Hussain sir. He is a motivational speaker and career counselor. Mental development, personality means first how we appear or how we think about a particular topic or how we behave. That is called a personality, and personality development means how to develop our features of physical or mental. Anybody would like to share 10th कितना important है? कोई आके यहाँ पे माइक पे बोलेगा Why is 10th standard so important? 10th standard इतना ज़्यादा important क्यों है? Good afternoon everyone. I am Arwa Safri from MCC School Shahabad and I am pursuing my 10th standard. As sir asked, why 10th standard is important? It is the basic step. It is the basic step. Like we study from LKG to 10, but one public exam is also not conducted. Why? Because 10th is important. Whatever we study from LKG or nursery from 10, only 10th is important because all whatever you study in back is gone. Now 10th, whatever you study is important. Why 10th marks card is important? Because our first achievement in our life will be 10th because it is the first certificate which we get from government. So it is important. Right? So guys, you are already an achiever. अभी आप लोगों को ये legacy continue करना है. कोई पूछता है कि आपका 8 में कितना स्कोर किया, 9th में कितना स्कोर किया, कोई पूछता है? कहाँ से पूछना शुरू करते हैं? 10th स्टैंडर्ड से. तो LKG, UKG और पूरे 9th स्टैंडर्ड तक आपने जो कुछ भी किया, जिस तरीके से भी पढ़ाई की, वो सेम फॉर्मूला 10th के लिए काम नहीं आएगा. 10th के लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए. इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे अब आए हैं. 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बुलाए, 8th और 9th को बुलाए क्या? नो, ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ. 8ನೇ ತರಗತಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಬರೀ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿವಿ? Because that is important and 10th requires a different approach. अगर आप 95% से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो वो PU आर्ट्स कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. कितना परसेंटेज? 95. विच स्ट्रीम? आर्ट्स के लिए. ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो 60 से नीचे मार्क्स आने वाले को आर्ट्स में डाला जाता है ना. फिर why this difference? Because हम साउथ इंडियंस यूजुअली UPSC, IPS, IAS वगैरह के बारे में नहीं सोचते. कब सोचते हैं? अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में. डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, तो चलो कम से कम IPS बन जाता हूँ. दिस इज वेरी रॉन्ग. वी शुड स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम नाउ. आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, टीचर बनना है, जो बनना है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया 10th में होना चाहिए. अगर वो आपके मन में आएगा, then you will strive to get the right marks in your 10th standard. I am not telling highest marks या out of. Right marks in 10th standard आएगा, आपका गोल हो तो. अगर आपका गोल ही नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? इसी में गलती करते हैं लोग. ऐसे वैसे 10 देते हैं, कुछ मार्क्स आते हैं, बाद में साइंस में मिलता है, कॉमर्स पढ़ लेते हैं, कॉमर्स पढ़ने के बाद में फिर जाके दूसरा कुछ करते हैं, फिर लास्ट में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो जाके कोई भी प्रोफेशन ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो वो बनना चाह रहा था, मैं तो ये बनना चाह रहा था. तो वो बनना चाह रहा था, बनना चाह रही थी का ख्वाब छोड़ दें. इफ यू वांट टू बिकम, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर फ्यूचर. यू आर द ड्राइवर ऑफ योर फ्यूचर. उसके लिए प्लानिंग चाहिए. नर्वसनेस कब आती है? इनकम्प्लीट स्लीप, आपके माइंड का फूड जब नहीं मिलता हो, खाना आपने बराबर नहीं खाया हो और आपका तैयारी बराबर ना हुई हो. तो आपने प्लानिंग करके तैयारी कर ली तो आपका नर्वसनेस नहीं आएगा. अगर आपने तैयारी नहीं की, फॉर श्योर नर्वसनेस आना है. नर्वसनेस आएगा. नाउ यू रिक्वायर द फूड फॉर योर सोल. व्हाट इज द फूड फॉर योर सोल? व्हाट इज द फूड फॉर योर सोल? आत्मा के लिए क्या चाहिए? प्रेयर. कैन वी अगेन क्लैप फॉर हर प्लीज? पूरे आंसर आप ही बोलोगे क्या? राइट? प्रेयर, your yoga, your meditation, your ध्यान, your namaz, your reciting the Quran, your reciting Gita, जो भी करो, but this is feeding your soul. या ध्यान, like concentration से बैठना, anything, whatever it suits you, you are comfortable to do with, do that.
Once you do that, your mind will be relaxed and nervousness will be going away. Otherwise, this will hamper your complete future actually. Underline, change the pen, कुछ भी करो, क्विकली करो बट कर लो, बिकॉज आंसर पढ़ने वालों को पूरा आंसर उनको पढ़ना होता है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स. 1 घंटे में 12-15 क्वेश्चन पेपर विल बी अ बिग टास्क. Okay, so here if you highlight the points, because most of the school teachers do discuss the rubrics कि एक चैप्टर का ब्रेकअप कितना है और मार्क्स किस आधार पे दिए जाते हैं, तो आप उसको ये कर लो कि किस उतना आधार आपको मीट करना होगा. So that point you have to underline. If you underline that point, you will secure your marks. 4 marks के लिए 4 marks मिलेंगे आपके. 1 marks 2 marks क्वेश्चन में आपके ज्यादा मार्क्स कम नहीं हो जाते, ज्यादा मार्क्स कट होते हैं आपके 4 marks 5 marks के क्वेश्चन. Okay, so in examination please mind you that I know some of the very good students एग्जाम में एक छोटा सा गलती करने के चक्कर में they have lost their career. छोटी सी गलती, they are very good scorers, 75-80 अबव स्कोर करते हैं. एग्जाम में एक छोटे सा आंसर जो नहीं आता है उसको बाजू वाले से कॉपी करने के चक्कर में, सामने वाले से कॉपी करने के चक्कर में, या कोई चीट निकाल के लिखने के चक्कर में अपना पूरा करियर तबाह कर ले. सो बेटर, उससे अच्छा होगा कि आज आप तैयारी कर लें, वहां पे जाके नहीं मेरी तैयारी नहीं हुई है मुझे चीटिंग करना ही पड़ेगा. व्हाई दैट सिचुएशन? यू डू इट नाउ, प्रिपेयर नाउ वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट वन. आंसर शीट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. एज आई टोल्ड यू, क्लीन मींस कुछ भी नहीं लिखना, ऐसा नहीं है. राइट, यू हैव टू राइट द आंसर बट इन अ वेरी लेजिटिमेट, वेरी क्लियर फॉर्मेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन, डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल इनकम्प्लीट. कई बार ऐसा होगा अगर आपका प्रिपरेशन बराबर नहीं हुआ है तो पहले आधे घंटे में आपको लगने लगा कि नो, दिस पेपर इज नॉट फॉर मी. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय अनदर 2.5 hours हियर, लेट मी लीव द हॉल. डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक. पहले तो ये मिस्टेक अगर नहीं करना है ना, प्रिपरेशन अच्छी कर लो फर्स्ट थिंग. अगर फिर भी तैयारी करने के बाद में एग्जाम में स्ट्रेस में, टेंशन में, एंजाइटी में अगर आपको लग रहा है कि आई एम अनेबल टू रिकॉल माय आंसर्स, पेन छोड़ दो, पेपर छोड़ दो, पुश बैक योरसेल्फ, टीका लगाओ, 2 मिनट 5 मिनट अपने ऊपर वाले को याद करो. डू अ स्मॉल मेडिटेशन एंड सीक हेल्प फ्रॉम गॉड. ओके, वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल. उसके बाद जितना हो सकता है उतना आंसर लिखो, बट डोंट लूज होप देयर, डोंट लूज होप देयर. कई बार टेंशन में होता है. आई नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू, जानते हुए आंसर भूल जाते हैं टेंशन में. Okay, so don't leave the hall till the time you're done. You're not yet done. So sit there, recall and then write your things. Okay? एग्जाम से पहले जैसे मैं बता रहा था, लोग गलती करते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगता है, दिसंबर का मंथ 6 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन, जनवरी 10 घंटे, फरवरी 14 घंटे, मार्च 24 घंटे. सोओगे कब, खाओगे कब? Right? So there are many students which I think our teachers fraternity will agree here कि usually there are some good students जो last time पे एग्जाम का टेंशन या पढ़ाई का इतना भार ले लेते हैं कि वो लोग लास्ट फ्यू डेज में एग्जाम से पहले या सही कई बार एग्जाम के दिन कैनुला लगाने के एग्जाम हॉल को आते हैं, सलाइन चढ़ाना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं. So guys, for that reason don't change your routine. आपका बॉडी इज सब्जेक्ट टू प्रोग्रामिंग. अगर आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, ग्रेजुअली बढ़ाओ. अगर आपको अपना स्लीपिंग टाइम कम करना है, ग्रेजुअली कम करो. डोंट डू इट अपसाइड डाउन. देयर आर सम पीपल हु थिंक दैट आज मैं सवेरे पढ़ूंगा, कल मैं रात में पढ़ूंगा. दिस विल नॉट वर्क. Where the family financial condition is poor, then they get discouraged. Why should they get discouraged? The government has given so many loan facilities, the banks are there, the government facilities are there. Baba, you get ready with good percentage of marks. And there are some voluntary organizations like Lions Club is there, Rotary clubs are there, and they are all coming forward to help the poor and needy children who are meritorious. Jindal company is there, Wipro is there, then we have Infosys. We should know to tap
We should try to get all those resources. How can I get? How can I make my life? That infuse you must always have, my dear children. Soulmate, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಾ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಾ? मुझे बताइए क्या हम मरने के लिए आए हैं? Please tell me, have we come to die? बताइए मुझे क्या हम मरने के लिए आए हैं? I did not get answer, children. हम जीने के लिए आए हैं क्या मरने के लिए आए हैं? Yes. जीने के लिए आए हैं, है ना? लेकिन मरने से पहले हमें जीना है, मौत अपने आप आती है. people other higher educations, है ना? क्या 10th पढ़ के छोड़ने वाले हैं क्या? कितने लोग आगे पढ़ने वाले हैं? मेरे को अभी भी पढ़ना है, इसलिए मैं आपसे पूछो मत आप क्या करने वाले हैं? Okay, very good, very good. So after 10th, we usually prefer two lines here. या तो हम UC लाइन में जाएंगे या तो हम डिप्लोमा से जाएंगे. I would like to talk in both the languages because it should be understandable to you people. So मैं हिंदी में भी बोलूँगी और कन्नड़ में भी बात करूँगी, no problem. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Okay, thank you so much. Okay, after 10th ನಾವು ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? two courses. either UC ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? कोई कोर्स आप लोगों के दिमाग में है? नहीं तो पहले फिक्स कर लिया बोलो यूसी बोल के. जो भी फिक्स कर लिया आलू साहब आ जाओ बस. ऐसा कुछ नहीं है. देखो यूसी इज बेस्ट एंड डिप्लोमा इज आल्सो बेस्ट फॉर द बॉयज बिकॉज इन दैट वी हैव मेनी फ्यूचर. डिप्लोमा के बाद आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं. यूसी के बाद यू हैव मेनी रूट्स हियर. यूसी जब होता है तो आप लोग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जा सकते हैं या मेडिकल लाइन में जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा लाइन्स ओपन हो जाते हैं. तो बच्चे बस मैथमेटिक्स को डर जाते हैं यहाँ पे पीयूसी में कैसा आना, मैथ्स हार्ड रहता. ऐसा कुछ नहीं है. डिप्लोमा में भी मैथ्स रहता है. आपको वहाँ पे भी बड़े बड़े डायग्राम्स मैथमेटिकल फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ता है. नाउ डिप्लोमा वाले एल्गोरिथम इन मैथमेटिक्स ओपन किए हैं. ठीक है, तो दोनों भी सेम डिफिकल्टी लेवल में है. पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. 10th पास कर लिए तो फिर क्या है टेंशन. ठीक है ना? सो बेसिकली हमारा कॉलेज आता है. कुछ हमारे कॉलेज के बारे में बोली तो अब अल्ली साल से तो बहुत सुन लिया. एक्चुअली है कहाँ है ये? इट इज इन गुलबर्गा नियर सेंट्रल बस स्टैंड. बट मैं अपने ट्रस्ट और हमारे कॉलेज के बारे में आपको कुछ ऐसे शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस. ठीक है, और जहाँ तक हमारा सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स मतलब ऑल कम्युनिटी के आ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम का, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल कम्युनिटी पीपल. ठीक है, और क्लासेस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे चलते हैं. फ्रेंडली नेचर टीचर्स आते हैं, वेल इक्विप्ड लैब्स आते हैं एंड क्लासरूम्स आर आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन. ठीक है, तो रादर हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की. तो इट इज देयर इन आवर कॉलेज आल्सो. यू कैन चूज एनी ब्रांच इन डिप्लोमा. आई प्रिफर ट्रेनिंग. व्हाट इज टुडेस ट्रेनिंग ब्रांचेस आते हैं. कोई भी एरोनॉटिकल में नहीं जाता सो वो आप प्रिफर कर सकते हैं. ठीक है, सो पीयूसी में आपको यहाँ पे भी 3-4 कोर्सेस आ जाते हैं जैसे कि PCMB ले लेते हैं या BMCS लेते हैं. CS में किसको इंटरेस्ट है? एक ही लड़की. अपना बोलो तो आजू बाजू का पहले देखते हैं. ये छोड़ना है. ठीक है, ठीक है. CS में किसको इंटरेस्ट है? बॉयज लोग भी CS जा सकते हैं. सो बोथ द ब्रांचेस आर्ट्स कॉमर्स में भी यू कैन टेक एडमिशंस. ठीक है, अपना गोल अभी से सेट करके आपको कौन सा एडमिशन होना है वो ले सकते हैं. और इफ यू हैव एनी डाउट्स वी आर गिवन योर कॉन्टैक्ट नंबर्स. प्लीज कॉन्टैक्ट अस. वी विल बी देयर फॉर यू सॉल्व योर एनी क्वेरी. ओके, और एनी डाउट्स आर हैविंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अस्सलामुअलैकुम. माई सेल्फ मसरत फ़ातिमा फ्रॉम अल-निसाब गर्ल्स PU कॉलेज. उसमें पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो आपको होना. लैब अच्छे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सब बुक्स अवेलेबल है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं. हर डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे टीचर्स. अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर डाउट क्लियर होता है. अगर डाउट भी है तो मैम सेपरेट जाकर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं. हमारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं. वहाँ पे जाने के लिए दूसरों को बहुत मुश्किल उठाना पड़ती है लेकिन वैसा नहीं है. हमारे नियर टू बस स्टैंड आराम से जा सकते हैं. अच्छी फैसिलिटीज़ है गर्ल्स के लिए स्पेशल. बहुत अच्छा है.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.